নমস্কাৰ টাইমিটাৰ দৰ্শকক মই জ্যোতি বৈশ্য স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিজেপিক লৈ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আজি দিল্লী বিধানসভাৰ মাজতে এক মন্তব্য কৰিছে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছে যেতিয়া বিজেপি চৰকাৰে কৃষি আইন আনিছিলে তেতিয়া বিজেপিৰ সমৰ্থকে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিজেপি চৰকাৰক কৈছিলে যে বাহ কিয়া মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰোক হে, আৰু যেতিয়া চৰকাৰে এই কৃষি আইন বাতিল কৰিছে তেতিয়াও বিজেপিৰ সমৰ্থকে কৈছে বাহ কিয়া মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰোক হে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ এই মন্তব্যই এতিয়া খলকনি তুলিছে দিল্লীৰ লগতে দেশৰ ৰাজনীতিত। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা বিশেষ খবৰ। অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছে নীলাজ হোৱাৰো সীমা আছে। এয়া অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মন্তব্য। মোদী চৰকাৰে তিনি কৃষি আইন যেতিয়া আনিছিলে তেতিয়া বিজেপিয়ে কৈছিলে বাহ কিয়া মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰোক হে, অৰ্থাৎ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰখনক ইয়াৰ ক্ৰেডিট দিছিলে। আৰু যেতিয়া কৃষকে প্ৰতিবাদ কৰাৰ পিছত কৃষি আইন বিজেপিয়ে বাতিল কৰিলে তেতিয়াও বিজেপিয়ে কয় বাহ কিয়া মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰোক হে। বিজেপিৰ এই অৱস্থা দেখি অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত দয়া উপজে বুলি আজি মন্তব্য কৰিছে। তাৰ পাছত তেওঁ কৈছে যে ভগৱানে এনেকুৱা কাম যাতে কাৰোৰে লগত নকৰে তাৰ বাবে তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। আৰু দিল্লী বিধানসভাৰ মজিয়াতে আজি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে নৰেন্দ্ৰ মোদীক সমালোচনা কৰি বিজেপিক সমালোচনা কৰি বিজেপিৰ নেতৃত্বক সমালোচনা কৰি এই মন্তব্য কৰিছে। মোদী চৰকাৰে কৃষকক খালিস্তানী, দেশদ্ৰোহী, সন্ত্ৰাসবাদী, চীনৰ এজেণ্ট, পাকিস্তানৰ এজেণ্ট আদি আখ্যা দিছিল। প্ৰতিবাদী কৃষকসকলক এইদৰে আখ্যা দিছিলে। স্বাধীন ভাৰতত দেশৰ কৃষকক এনেকৈ কোনোবাই ক'ব পাৰে বুলি কেতিয়াও কল্পনাই কৰা নাছিল, কিন্তু এই কাম বিজেপিৰ চৰকাৰখনে কৰিছিলে। কিন্তু ইয়াৰ পাছতো কৃষকে শান্তিৰে প্ৰতিবাদ কৰিলে, নিজৰ প্ৰতিবাদ আগবঢ়াই লৈ গ'ল। কৃষকলৈ পানীৰ শিলৈৰে কৃষকক মোদী চৰকাৰে আক্ৰমণ কৰিলে। এয়া অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মন্তব্য। কিন্তু কৃষকৰ আত্মবিশ্বাসৰ সন্মুখত পানীৰ শিলৈ পানী পৰ্যন্ত শুকাই গ'ল। আজি বিধানসভাৰ মজিয়াত এয়া মন্তব্য কৰি তেওঁ কৈছে মোদী চৰকাৰে কৃষকৰ আন্দোলন বন্ধ কৰিবলৈ পথৰ ওপৰত গজাল পুতিলে, কিন্তু কৃষকৰ সাহসৰ সন্মুখত চৰকাৰৰ গজাল গলি গ'ল। ইয়াৰ পিছত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে সকলো কৰিও মোদী চৰকাৰে কৃষকৰ সাহস ভাঙিব নোৱাৰিলে। অৱশেষত কৃষকৰ ওচৰত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সেও মানিবলৈ বাধ্য হ'ল, মোদী চৰকাৰে সেও মানিবলৈ বাধ্য হ'ল। তেওঁলোকৰ দৰ্পচূৰ্ণ হ'ল, অহংকাৰ চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰিলে কৃষকে। আৰু নিজৰ প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে কৃষকে এই কাম দেখুৱাই দিলে। স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সমানেই কৃষকৰ এই আন্দোলন আছিলে। এয়া কেৱল কৃষকৰ জয় নহয়, এয়া গণতন্ত্ৰৰ জয়, ভাৰতৰ জয় বুলি মন্তব্য কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। ইয়াৰ পূৰ্বতে ভবা হৈছিলে সদনত থকা সংখ্যা গৰিষ্ঠতাৰ জৰিয়তে মোদী চৰকাৰে যি ইচ্ছা তাকেই কৰিছে, দেশত গণতন্ত্ৰ বিপদাপন্ন হৈছে, এনেকুৱা এটা ধাৰণা দেশৰ জনতাৰ মাজত আহি গৈছিলে। কিন্তু এইসকল কৃষকে প্ৰতিবাদ কৰি দেখুৱালে যে গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত জনতাৰ বিশ্বাস উভতাই আনিলে। যেতিয়া প্ৰতিবাদ কৰা হয়, গণতান্ত্ৰিক যেতিয়া প্ৰতিবাদ হয়, চৰকাৰে সকলো কথাত সেও মানিবলগীয়া হয়। এই কথা কৃষকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে। এইদৰে আজি বিজেপিক তেওঁ কথাৰে থকা সৰকা কৰে, নীলাজ হোৱাৰো এক সীমা আছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। আৰু দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যেতিয়া কৃষি আইন অনা হৈছিলে তেতিয়াও বিজেপিয়ে কয় বাহ কিয়া মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰোক হে, আৰু যেতিয়া কৃষি আইন বাতিল কৰা হয় তেতিয়াও বিজেপিয়ে কয় বাহ কিয়া মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰোক হে। এই মুহূৰ্তত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সেই মন্তব্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। बेशर्मी की भी हद होती है। जब ये 3 काले कानून लाए गए तो भाजपा वालों ने चारों तरफ वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है, और जब ये तीनों कानून वापस लिए गए तो बोले वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है। मतलब मैं यही कह सकता हूं, मुझे बहुत दया आती है आप लोगों के ऊपर। क्या गत बना दी आप लोगों की आपके नेताओं ने। ये ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। एंटी नेशनल हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, चाइना के एजेंट हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं, पता नहीं क्या क्या किसानों को गालियां नहीं दी गई। कभी किसी ने सोचा नहीं था आज़ाद भारत में एक ऐसा दिन आएगा जब अपने किसानों को इस तरह की गंदी गंदी गालियां दी जाएंगी। पर किसानों ने पलट के इनका जवाब नहीं दिया। किसान शांति से बैठे रहे। इतनी हिंसा की गई, इतने वाटर कैनन इनके ऊपर बरसाए गए, लेकिन इनकी हिम्मत के सामने सरकारों के वाटर कैनन का पानी सूख गया। इनकी कीलें
सड़क के ऊपर कीलें ठोकी गई, लेकिन इनकी हिम्मत के सामने सरकार की कीलें भी पिघल गई। बैरियर लगाए गए, सब किया गया इनको, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं तोड़ पाई ये सरकार। और अंत पंत में इस सरकार को झुकना पड़ा, इनके अहंकार को तोड़ दिया इन किसानों ने। जिस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, ये किसी आजादी की लड़ाई से कम नहीं था। सबसे बड़ी बात ये हुई कि ये किसानों की जीत नहीं है, ये जनतंत्र की जीत है, भारत की जीत है। इस देश के अंदर जो पिछले कुछ सालों से लोगों का डेमोक्रेसी के ऊपर से भरोसा उठता जा रहा था कि यार इस देश के अंदर तो कुछ चलता ही नहीं है, इनकी मेजॉरिटी आ गई है, कुछ भी कर लेते हैं, किसी के खिलाफ भी ये करते हैं, वो करते हैं, रेड मारते हैं, लोगों को तंग करते हैं, डेमोक्रेसी तो बची ही नहीं देश के अंदर। ऐसा इनको भी लगता है। इनसे जब प्राइवेट में बात करो, ये भी बहुत दुखी हैं, ये भी सारे बहुत दुखी हैं वो, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि भाई यहाँ पे जो ज्यादा तेज बोलेगा उसको पद मिलेगा। तो इनकी मजबूरी है, पर ये हैं सारे अपने ही, दिल से ये सारे अपने साथ हैं। सो जनतंत्र की जीत हुई है, जनतंत्र में लोगों का भरोसा बढ़ा है बहुत ज्यादा। एक चीज मैं देख रहा हूं, मतलब बेशर्मी की भी हद होती है। जब ये 3 काले कानून लाए गए तो भाजपा वालों ने चारों तरफ वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है, और जब ये तीनों कानून वापस लिए गए तो बोले वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है। मतलब मैं यही कह सकता हूं, मुझे बहुत दया आती है आप लोगों के ऊपर। क्या गत बना दी आप लोगों की आपके नेताओं ने। ये ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। एंटी नेशनल हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, चाइना के एजेंट हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं, पता नहीं क्या क्या किसानों को गालियां नहीं दी गई। कभी किसी ने सोचा नहीं था आजाद भारत में एक ऐसा दिन आएगा जब अपने किसानों को इस तरह की गंदी गंदी गालियां दी जाएंगी। पर किसानों ने पलट के इनका जवाब नहीं दिया, किसान शांति से बैठे रहे। इतनी हिंसा की गई, इतने वाटर कैनन इनके ऊपर बरसाए गए, लेकिन इनकी हिम्मत के सामने सरकारों के वाटर कैनन का पानी सूख गया। इनकी कीलें, सड़क के ऊपर कीलें ठोकी गई, लेकिन इनकी हिम्मत के सामने सरकार की कीलें भी पिघल गई। बैरियर लगाए गए, सब किया गया इनको, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं तोड़ पाई ये सरकार। और अंत पंत में इस सरकार को झुकना पड़ा, इनके अहंकार को तोड़ दिया इन किसानों ने। जिस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, ये किसी आजादी की लड़ाई से कम नहीं था। सबसे बड़ी बात यह हुई कि ये किसानों की जीत नहीं है, ये जनतंत्र की जीत है, भारत की जीत है। इस देश के अंदर जो पिछले कुछ सालों से लोगों का डेमोक्रेसी के ऊपर से भरोसा उठता जा रहा था कि यार इस देश के अंदर तो कुछ चलता ही नहीं है, इनकी मेजॉरिटी आ गई है, कुछ भी कर लेते हैं, किसी के खिलाफ भी ये करते हैं, वो करते हैं, रेड मारते हैं, लोगों को तंग करते हैं, डेमोक्रेसी तो बची ही नहीं देश के अंदर। ऐसा इनको भी लगता है। इनसे जब प्राइवेट में बात करो, ये भी बहुत दुखी हैं, ये भी सारे बहुत दुखी हैं वो, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि भाई यहाँ पे जो ज्यादा तेज बोलेगा उसको पद मिलेगा। तो इनकी मजबूरी है, पर ये हैं सारे अपने ही, दिल से ये सारे अपने साथ हैं। सो जनतंत्र की जीत हुई है, जनतंत्र में लोगों का भरोसा बढ़ा है बहुत ज्यादा। एक चीज मैं देख रहा हूं, मतलब बेशर्मी की भी हद होती है। जब ये 3 काले कानून लाए गए तो भाजपा वालों ने चारों तरफ वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है, और जब ये तीनों कानून वापस लिए गए तो बोले वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है। मतलब मैं यही कह सकता हूं, मुझे बहुत दया आती है आप लोगों के ऊपर। क्या गत बना दी आप लोगों की आपके नेताओं ने। ये ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। एंटी नेशनल हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, चाइना के एजेंट हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं, पता नहीं क्या क्या किसानों को गालियां नहीं दी गई। कभी किसी ने सोचा नहीं था आजाद भारत में एक ऐसा दिन आएगा जब अपने किसानों को इस तरह की गंदी गंदी गालियां दी जाएंगी। पर किसानों ने पलट के इनका जवाब नहीं दिया, किसान शांति से बैठे रहे। इतनी हिंसा की गई, इतने वाटर कैनन इनके ऊपर बरसाए गए, लेकिन इनकी हिम्मत के सामने
सरकारों के वाटर कैनन का पानी सूख गया, इनकी कीलें, सड़क के ऊपर कीलें ठोकी गई, लेकिन इनकी हिम्मत के सामने सरकार की कीलें भी पिघल गई। बैरियर लगाए गए, सब किया गया इनको, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं तोड़ पाई ये सरकार। और अंत पंत में इस सरकार को झुकना पड़ा, इनके अहंकार को तोड़ दिया इन किसानों ने। जिस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, ये किसी आजादी की लड़ाई से कम नहीं था। सबसे बड़ी बात यह हुई कि ये किसानों की जीत नहीं है, ये जनतंत्र की जीत है, भारत की जीत है। इस देश के अंदर जो पिछले कुछ सालों से लोगों का डेमोक्रेसी के ऊपर से भरोसा उठता जा रहा था कि यार इस देश के अंदर तो कुछ चलता ही नहीं है, इनकी मेजॉरिटी आ गई, ये कुछ भी कर लेते हैं, किसी के खिलाफ भी ये करते हैं, वो करते हैं, रेड मारते हैं, लोगों को तंग करते हैं, डेमोक्रेसी तो बची ही नहीं देश के अंदर। ऐसा इनको भी लगता है। इनसे जब प्राइवेट में बात करो, ये भी बहुत दुखी हैं, ये भी सारे बहुत दुखी हैं वो, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि भाई यहाँ पे जो ज़्यादा तेज बोलेगा उसको पद मिलेगा, तो इनकी मजबूरी है। पर ये हैं सारे अपने ही, दिल से ये सारे अपने साथ हैं। सो जनतंत्र की जीत हुई है, जनतंत्र में लोगों का भरोसा बढ़ा है बहुत ज़्यादा।